Now today we will discuss about governor. Uh, Now what is governor? The governor is a device, mechanical device, which is used in which is used generally in engines where fuel consumption engines are there, that we generally use governor to regulate the fuel supply. And why governor is used? Governor is used to regulate the supply of fuel by sensing the load capacity of engine. If there is higher load or load is very high, then the supply of fuel should be higher to compensate the load. And when the load is low or the speed of the engine is low, then we use lower fuel. And to regulate that supply of fuel, we need a device, and that device is governor. Suppose in generators, as we all know that in party or in wedding anniversaries, generator is used. So that generator consumes more fuel. Suppose in a function, if suppose 10 or 15 fans are there or more lights are there, then the generator consumes more diesel, isn't it? And when we use only 2 or 3 fans and less light, then it consumes less fuel or less diesel. So how this happens? So this happens only by using a device, mechanical device, which is known as governor, which regulates the supply of fuel during peak time. It opens the valve and the supply of fuel increases, and when the load is less or the load is very low, then it controls the supply of fuel by partially opening the valve. Now the governor is used to regulate the mean speed of an engine. The governor is used to regulate the mean speed of an engine over a duration during which the load of an engine varies by controlling the fuel supply of the engine. So by controlling the fuel supply of the engine, we control the speed of the engine over the duration of fluctuation of engine load. Okay. Now classification of governor. Governor can be classified in two ways, that is in centrifugal governor. First one is centrifugal and second is inertia governor. Now inertia governor is very less in use, and it is very complex, so we will focus more on centrifugal governors only. Now centrifugal governor can be subdivided into three categories. The first one is pendulum type, second one is dead weight type, and third one is spring control governor. Okay. Now pendulum type, in this type of governor, one governor is only used, that is watt governor, WATT, and it is very basic governor, or the this is the first governor, you can say the very basic governor that is used. Now in watt governor only, when we amplify or the modification is done to the watt governor, then other governor is there. Now dead weight governor is of two types: water governor, Powell governor. Spring loaded governor is of three types, that is Hartnell, Wilson Hartnell, and prickling governor. Now it is very important governor, watt governor, because this is the basic or the fundamental governor. When we modify watt governor, we get Porter governor. When we modify watt governor or Porter governor, we get Powell governor. When we modify watt governor or the Porter or Powell governor, we get Hartnell, Wilson Hartnell, or prickling. So we will discuss one by one these types of governor one by one. Now the first one is watt governor. Okay. Now this is a construction of watt governor. Okay. This is the instrument. This. Now this is the engine shaft. Suppose this is the engine shaft. This is the engine shaft. Okay. Engine shaft. In this shaft, because it's rotate
due to the rotation of engine or the power produced by the engine. Now this bevel gear, this is bevel gear. Okay, now this is bevel gear. So bevel gear is attached to the engine shaft and it rotates. Since this engine shaft rotates, this bevel gear also rotates, and from bevel gear, this is construction of bevel, then it also rotates, and these rotations of engine shaft will be transferred to this unit. Okay, now this unit, central spindle axis, this is the central axis, this is the axis of the spindle which rotates. Now this axis consists of, from the very bottom you will see this is upper arm, this is lower arm, this is fly ball, this is sleeve, this is very important, this is sleeve, and these are the stoppers. This is stopper 1, and this is stopper 2. So these are the stopper 1 and stopper 2. Now sleeve. Now this is the part of flywheel. Now from sleeve there is an attachment made, and this attachment is of a bell crank lever. This attachment of a bell crank lever. This attachment, which is goes up to fuel supply. This is the fuel supply of fuel, working fluid, supply of fuel. Okay, now this is the supply of fuel, this is the bell crank lever, this is our governor, this whole is our governor, and this is another attachment of bell crank lever to the sleeve, and this bell crank lever is attached to the throttle valve. This is throttle valve. Okay, now what is the working is this rotates. Suppose this is the spindle and it rotates in this direction. Okay, this way it rotates. Now when it rotates, because of this arm, two arms are there, these arms, and fly balls are attached in both the arms. This is the lower arm, which is like this to hold the upper arm, and fly ball is attached. Now this sleeve, it can move up and down. Now what happens when it starts rotating? When this starts rotating, spindle starts rotating, when the load is higher, then engine speed is in less RPM. When the load in engine is high, or when the suppose vehicle is ट्रेवलिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, मतलब ऊंचाई की तरफ जब चढ़ता है तो क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, आरपीएम कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि इंजन पे लोड बढ़ जाता है. जैसे इंजन पे लोड बढ़ेगा उसका आरपीएम कम होगा. तो जैसे इसका आरपीएम कम होगा, इस आरपीएम धीरे धीरे घूमेगा. जैसे ये धीरे धीरे घूमेगा, फ्लाईबॉल क्या होगा, कम आएगा, नीचे की तरफ आएगा. जैसे जैसे धीरे धीरे घूमेगा वो फ्लाईबॉल नीचे की तरफ आएगा. नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये स्लीव जो है वो नीचे की तरफ आएगा. ये पोर्शन, ये स्लीव जो है वो नीचे की तरफ आएगा. जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये इसका पोर्शन ऐसे आएगा. जब ये ऐसे खिंचाएगा तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी इधर खिंचाएगा. जब ये ऐसे खिंचाएगा तो क्या होगा, ये थ्रोटल वाल्व खुल जाएगा, ये थ्रोटल वाल्व खुल जाएगा, है ना, इस दिस वे. जब ये थ्रोटल वाल्व खुल जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएगा. तो जब लोड ज़्यादा होगा तो सप्लाई ऑफ फ्यूल ज़्यादा होगा. फिर जैसे लोड कम हो जाएगा, इंजन में लोड कम होगा, मतलब और जैसे ढलान में हम लोग जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे उसमें क्या होता है, इंजन में हमको लोड नहीं पड़ता है, या फिर जब गाड़ी में ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा सवारी नहीं बैठा है, ज़्यादा सामान नहीं है, तो क्या होता है, उसमें लोड कम होता है. तो उस समय क्या होता है, ये इसका आरपीएम हायर स्पीड पे चलता है, इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा. जब आरपीएम तेज़ी चलेगा तो क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से घूमता है. तो क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, अब ऐसे से घूमेगा तो फ्लाईबॉल क्या होगा, ऊपर की तरफ भागता है. ये जब ऊपर की तरफ भागेगा, इसका मोशन जब ऊपर की तरफ भागेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जैसे ही ऊपर की तरफ खिंचाता है तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये इसके साथ अटैच है, स्लीव के साथ,
तो ये जब स्लीव के साथ अटैच है तो स्लीव को भी ऊपर की तरफ खींचता है। जब ये ऊपर की तरफ खींचता है तो फिर क्या होता है, इसका अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है, मतलब ये ऊपर की ऐसे जाता है। ये जब ऐसे जाएगा तो ये थोड़ा नीचे खिंचाएगा, ये जब नीचे खिंचाएगा तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो जब ये ऐसे आता है तो फिर ये ओरिजिनल पोजीशन जो ग्रीन पोर्शन में दिख रहा है उस पोजीशन में चला जाता है। तो फिर क्या होता है, फ्यूल का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे होता है, कम जाता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का सप्लाई को रेगुलेट करते हैं और फ्यूल का सप्लाई को हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गवर्नर, जिसका नाम है वाट गवर्नर। ओके नाउ अब यहाँ पे क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हम लोग को वाट गवर्नर में कुछ न्यूमेरिकल बनाना है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल बनाना है। तो इसमें एक ही चीज़ हम लोग को निकालना रहता है, हाइट ऑफ द फ्लाईबॉल। ये हाइट ऑफ फ्लाईबॉल क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना उठा, ओरिजिनल में कितना था, कितना उठा, और ये इसका उठने और नीचे जाने और ऊपर जाने के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, आरपीएम के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। जो इंजन का शाफ्ट का आरपीएम है उसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि इंजन का शाफ्ट का स्पीड जैसी होगा उसके हिसाब से ये फ्लाईबॉल ऊपर और नीचे उड़ता है और नीचे जाता है और अप होता है। तो एच हाइट ऑफ द फ्लाईबॉल इज जी बाय ओमेगा स्क्वायर। जी एच वी ऑल नो दैट 9.81 and omega is 2 pi n by 60. Okay, now 895 जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 895 बाय एन स्क्वायर। तो जब ये आएगा मेरा मीटर में, देन एच इज इक्वल टू 895 बाय एन स्क्वायर और एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 बाय एच। तो ये चाहे इसको हम लिखिए या इसको लिखे, तो एन अगर दिया रहेगा तो एच निकल जाएगा, एच दिया रहेगा तो एम निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे आगे न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग बनाते हैं ना। अब मेरा जो नेक्स्ट टाइप का गवर्नर है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टर गवर्नर। और पोर्टर गवर्नर क्या है, पोर्टर गवर्नर क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ वाट गवर्नर और कुछ नहीं। पोर्टर गवर्नर इज जस्ट ए मॉडिफिकेशन ऑफ वाट गवर्नर। इसमें हम लोग क्या देखें, सेम टू सेम सब कुछ वही है जो हम लोग देखें अभी वाट गवर्नर में। ये मेरा स्लीव है, सपोज दिस इज स्लीव, सपोज ये बहुत सिंपल हम बनाए हैं, ये स्लीव है सपोज करो, इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि उसमें भी वैसे ही हो रहा था पिछले वाला वाट गवर्नर में। तो ये मोशन ऐसे ही होगा इसका। सिर्फ क्या है इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है उसमें कि इसमें एक सेंट्रल लोड इसमें लगा हुआ है। दिस इज सेंट्रल लोड या सेंटर लोड। ये जो सेंट्रल लोड लगा हुआ है यही एक चेंज है इसमें, जो कि वाट गवर्नर में मेरा नहीं था। बाकी उसी तरह से यहाँ फ्लाई बॉल भी है, दिस इज फ्लाई बॉल है ना, दिस इज फ्लाई बॉल, दिस इज लोअर आर्म, दिस इज अपर आर्म, है ना। तो सेम ऐसे जैसे ये पहले था पाइवोट पॉइंट है ये, जहाँ पे ये भी क्या होगा, सेम उसी तरह से ये रोटेट करेगा। यहाँ पे आर्म लगा हुआ है, यहाँ फ्लाई बॉल लगा हुआ है, ये लोअर आर्म इसको सपोर्ट किया हुआ है। अब क्या होगा, ड्यू टू दिस सेंट्रल लोड की वजह से क्या होगा, इसका एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या था कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा था लोड ना होने की वजह से वाट गवर्नर में। अब हम लोग क्या किए यहाँ पे, सिर्फ मॉडिफिकेशन क्या किए हैं, वाट गवर्नर ही मान के चलो, ये वाट गवर्नर है, सेम वाट गवर्नर ही है ये। जहाँ पे इंजन शाफ्ट आता है, इंजन शाफ्ट में बेबल गियर लगा हुआ रहता है, बेबल गियर से फिर स्लिप का कनेक्शन है, बाकी सारा कनेक्शन सेम टू सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये सेंटर लोड का, और इस लोड के लगने की वजह से क्या होता है, इसका एफिशिएंसी थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टर गवर्नर, है ना। तो दिस इज नोन एज डेड वेट गवर्नर, क्योंकि यहाँ पे एक डेड वेट लगा हुआ है, इसको हम लोग सेंट्रल लोड बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है जो कि वाट गवर्नर में नहीं था, जिसके कारण थोड़ा सा एफिशिएंसी इसका ज़्यादा बेहतर हो जाता है वाट गवर्नर के साथ। या वाट गवर्नर में उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होता है जितना कि इसमें पोर्टर गवर्नर में होता है। और इसका जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं हाई स्पीड एप्लीकेशंस में, जहाँ हाई स्पीड एप्लीकेशंस होता है तो उस जगह पे हम लोग इसका ज़्यादा यूज करते हैं, है ना। और क्योंकि ये क्या है, डेड वेट गवर्नर के अंदर आता है। तो अब इसके बाद जो हम लोग गवर्नर यूज करेंगे उसका नाम है प्रोवेल। सेम उसी कैटेगरी में डेड वेट गवर्नर के कैटेगरी में दूसरा जो गवर्नर आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोवेल गवर्नर। प्रोवेल गवर्नर और पोर्टल गवर्नर में क्या डिफरेंस है, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ वही है, इसमें जो है
सेम एज इट इज, जैसे वार्ड गवर्नर मेरा था सब कुछ सेम उसी तरह से स्लिप भी ऐसे मूव करेगा, ये मेरा इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल लोड भी लगा हुआ है, सेंटर लोड, ठीक है, लोड लगा हुआ है, ये लोअर आर्म, दिस इज अपर आर्म में दिस इज फ्लाई बॉल, है ना, फ्लाई बॉल लगा हुआ है यहाँ पे, ये पाइवोट है, पाइवोटेड पॉइंट है जहाँ से ये क्या बोलते हैं स्पिंडल इसका मूव करता है। तो सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही है। अब इसमें क्या है, एक इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड लिंक, EXTEND, एक्सटेंडेड लिंक। इसमें क्या डिफरेंस है और पोर्टर गवर्नर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सेम टू सेम वही है। जहाँ फ्लाई बॉल यहाँ पहले यहाँ लगता था, इस जगह पे जो जंक्शन होता था मेरा अपर आर्म और लोअर आर्म का जो जंक्शन होता था, उस जंक्शन में हम लोग फ्लाई बॉल लगाते थे पहले, पोर्टर गवर्नर और वार्ड गवर्नर दोनों में। अब इसमें सेंट्रल लोड तो लगेगा ही पोर्टर गवर्नर जैसा, लेकिन क्या किए हम लोग यहाँ से एक एक्सटेंडेड लिंक निकाल दिए, एक एक्सटेंडेड लिंक निकाल दिए दोनों साइड में, और फ्लाई बॉल को उसके साथ अटैच कर दिए, मतलब यहाँ पे इस तरीके से दो लिंक लगा दिए, ठीक है। अब फ्लाई बॉल मेरा यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, फ्लाई बॉल इस तरीके से लगा दिया तो इसका एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाता है सेंट्रल लोड के साथ। तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, अभी तक हम लोग 2 मॉडिफिकेशन देखें। वार्ड गवर्नर के साथ हम लोग क्या किया, सेंट्रल लोड लगाया तो पोर्टर बढ़ गया। वार्ड गवर्नर के साथ हम लोग क्या किया, सेंट्रल लोड लगाया तो वो क्या बन गया, पोर्टर बन गया। और जब पोर्टर के साथ हम लोग क्या किए, एक्सटेंडेड लिंक लगा के फ्लाई बॉल को ऊपर कर दिए तो वो क्या बन गया, प्रोवेल गवर्नर बन गया। तो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ डेड वेट गवर्नर, पोर्टर एंड प्रोवेल। नाउ okay, now next is Hartnell governor. This is Hartnell governor in which there is no central load. Instead of central load हम लोग क्या किया, अब सेंट्रल लोड को हटा के अब प्रोवेल गवर्नर को देख लीजिए आप, बिल्कुल प्रोवेल गवर्नर जो हम लोग देखे अभी, ये सेम, ये इसको देख लीजिए और हार्टनेल को देख लीजिए, दोनों सेम टू सेम है। लेकिन क्या है इसमें, इसके साथ चेंजेस क्या है, चेंजेस क्या है कि जो सेंट्रल लोड हम लोग लगाए थे उस सेंट्रल लोड की जगह पर हम लोग क्या किए, यहाँ पे हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग लगा दिए। क्या लगा दिए हैं, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, ठीक है। और ये इसका क्या है, फ्रेम, इसको हम लोग बोलते हैं केसिंग। केसिंग में रखना ही पड़ेगा, इसको केसिंग में रखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट कर दिए केसिंग को। और ये मेरा क्या, फ्लाई बॉल, जैसे कि हम लोग पहले ही से देखते आ रहे हैं, फ्लाई बॉल, है ना। और ये क्या है, बेल क्रैंक लीवर, बेल क्रैंक लीवर। ये मेरा क्या, स्लीप है, जिसका मोशन कैसे होता है, अप एंड डाउन मोशन होता है। तो यहाँ से इंजन का अटैचमेंट आएगा, बेवल गियर लगा रहेगा, फिर ये रोटेट करेगा, ये पूरा पेरिफेरी में रोटेट करेगा। ये फ्लाई बॉल दोनों क्या होगा, ऊपर में ऐसे घूम रहा है, ये कंटिन्यूस ऐसे घूमता है, और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है फ्लाई बॉल। फिर ये फ्लाई बॉल जो है इसमें, इसका जो फ्लाई बॉल है, ये देखो यहाँ पे अच्छा से, ये जो फ्लाई बॉल है इसका, फ्लाई बॉल क्या कर रहा है, जैसे ये 2 फ्लाई बॉल है, तो जब ये स्लो डाउन होगा तो ये इस तरह से झुक जाएगा। जब आरपीएम कम होगा, ठीक है, जब आरपीएम कम होगा तो ये जो 2 बेल क्रैंक लीवर है वो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसका आरपीएम क्या है, स्लो है। और जैसे इसका आरपीएम बढ़ेगा ये क्या होगा, ये ऐसे दोनों आउटसाइड निकलेगा। इस जब रोटेट करेगा तो फ्लाई बॉल क्या होगा, दूर जाना चाहेगा। जब दूर जाना चाहेगा ये इधर खिंचाएगा और ये क्या होगा, इधर खिंचाएगा। तब क्या होगा, स्लिप ऊपर की तरफ जाएगा। स्लिप ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ फ्यूल कम हो जाएगा हायर आरपीएम में। और फिर जब ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, मतलब ये सिकुड़ जाएगा, इधर सिकुड़ जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर मूव करेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो फिर क्या होगा, सप्लाई ऑफ फ्यूल ज़्यादा हमको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लोड क्या बढ़ गया है, ठीक है। तो दिस इज हार्टनेल गवर्नर, ओके। इट्स कम्स अंडर स्प्रिंग लोडेड गवर्नर के अंदर भी ये आता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये अब देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स है गवर्नर का, और एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं जो अगर गवर्नर का न्यूमेरिकल आए तो, ओके। नाउ थैंक यू।